بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں 100 حافظ قرآن کرانے والی لڑکی پر اللہ کا عذاب کیسے آ گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو خود اس کے شوہر بیان کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو میں انت تک بنے رہیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک لڑکی جس نے 100 لڑکیوں کو حافظ قرآن کرایا تھا، اس پر اللہ کا عذاب کیسے آ گیا۔ تو پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں انت تک۔ میں ہوں آپ کا دوست امتیاز رضا، اور آپ کو ایک سچی واقعہ آج کی اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں، تو دل تھام کے اس واقعہ کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی نیک حافظ قرآن لڑکی تھی جس نے شادی سے پہلے 100 لڑکیوں کو حافظ قرآن کرایا تھا، لیکن حافظ قرآن کرایا تھا جب اس کا نکاح ہو گیا تو نکاح کے 6 سال گزر گئے، کوئی بھی اولاد اس کو نہیں ہوا۔ شوہر اپنے کام پر اپنے وقت کے مطابق جایا کرتا تھا، لیکن بیوی بہت ہی زیادہ صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور اسے اس بات کا غم ستا رہا تھا کہ ہمارے شادی کو 6 سال ہو گئے، اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوا، اور شوہر کا بھی بہت ہی غمگین تھا اور وہ اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کی اس دعا کو سن لیے، اور وہ ماں بن چکی، یعنی اس عورت کو ماں بنی، اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور شوہر بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ چلو، ہم 6 سال سے شادی شدہ تھے اور میری بیوی جو تھی ماں نہیں بن رہی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں بیٹی جیسے نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اس کو ادھر اس بات کا خوشی تھا، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی، ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور ماں کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے ماں کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کو جنازے کو لے جا کر اچھے طریقے سے جنازہ پڑھ کر دفن کیا، اور اس کی جو لڑکی تھی تو اس کے گھر والے، یعنی لڑکی کے گھر والے لڑکی کو سنبھال رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس طریقے سے وہ بہت ہی زیادہ غمگین تھا، جیسے ہی اس نے دفن کر کے آیا، اور آنے کے بعد سے آندھی اور طوفان اور بارش ہو رہا تھا، اور اس کے جو لڑکی کے گھر والے تھے وہ بھی ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی یادوں میں غمگین تھا۔ اور پیارے دوستو، اس کی لڑکی کو اس کے گھر والے سنبھال رہے تھے، تبھی اس کو سوچتے سوچتے اس کو آنکھ لگ گئی، اور اس نے دیکھا کہ میری بیوی تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میری بیوی بہت ہی نیک اور شریف تھی، اور اس نے شادی سے پہلے 100 لڑکیوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس کو اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بارش تھم چکی تھی اور طوفان رک چکا تھا، تب اس نے رات کے وقت جب قبرستان گیا، تو قبرستان جانے کے بعد سے جو ماجرا دیکھنے کے بعد سے دنگ رہ گیا، حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی جو قبر ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، اور اس کی قبر سے دھواں نکل رہے ہیں۔ جب اس منظر کو اس نے دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور حیران و پریشان ہو گیا، اور اس نے کوشش کیا قبر کو بند کرنے کے لیے، لیکن آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھی کہ وہ بند نہیں کر سکا۔ چنانچہ اس نے ایک مزدور کھوجنا شروع کیا، 4 گنا زیادہ پیسہ لے کر ایک مزدور نے اس قبر کو بہت ہی دور سے اس کو بند کرنے کی کوشش کیا۔ چنانچہ اس طریقے سے اس نے اپنی بیوی کی قبر کو بند کر دیا، اور بند کر کے جب گھر واپس آیا
घर वापस आया तो इसकी माँ से अपने सास से पूछा कि मेरी जो बीवी थी मैंने इसको 6 साल में कभी भी कोई गुनाह करते नहीं देखा, बहुत ही नेक और मुत्तकी और परहेजगार थी और मुझे कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। और इस तरीके से मैं जब कब्रिस्तान गया तो मैंने देखा कि इसकी कब्र फटी हुई है और कब्र में से आग और धुएं निकल रहे हैं। आखिर इसका क्या माजरा है? माँ से बयान करना शुरू कर दिया। तब माँ ने जब उसकी जो साली थी यानी उस लड़की की जो बहन थी उसने बुलाया और बुलाने के बाद से कमरे में ले गई और ले जाने के बाद से पूरी हकीकत बताया। और वो इसकी जो साली थी, लड़की की जो बहन थी, इसकी लड़की को वही संभालती थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या में आप देखिए, अंत में आपको पता चलेगा कि 100 हाफिज़े कुरान कराने वाली लड़की पर आज़ाब आने की असल वजह क्या है। मैं इस बात पर ज़्यादा रोशनी डाल रहा हूँ। वाक़या काफ़ी तवील है, तमाम बातों को अगर बयान करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब साली आप लेके गई कमरे में तो उसने बयान किया कि दरअसल बात यह है कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो हाफिज़े कुरान थी और उसने 100 लड़कियों को हाफिज़े कुरान कराया करता था। क्योंकि एक बार मोहल्ले में किसी लड़के की कोई तबीयत ख़राब हुई तो मेरी बहन ने फूंक कर और दम करके उस पर दम किया और दम करने के बाद से वो लड़का ठीक हो गया। और इसी तरीके से मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मशहूर हो गई कि ये बहुत ही नेक है, इसके फूंक में बहुत ही ताकत है, लड़का ठीक हो गया। क्योंकि और अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई का जो गुर्दा था वो फेल हो गया और हमें काफ़ी सख्त पैसों की ज़रूरत थी। तो एक शख्स आए और उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपया देंगे, तुम हमारे इस चीज़ का हमें कोई तरीका बता दो। तो चुनांचे वो चीज़ मेरी बहन ने करके दिया। तो वो जिस मकसद के लिए आए थे उनका वो मकसद पूरा हो गया। और इसी तरीके से मेरी बहन की जो चर्चा थी दुआ ताबीज़ का और झाड़ फूँक का, और इस तरीके से वो दिन पर दिन बहुत ही मशहूर होती गई और कबीले और इलाकों में उसका नाम होता गया। तो मेरे जहन में एक दिन सवाल ये आया कि आखिर मेरी बहन क्या करती है कि उसको इस तरीके से क्या करती है कि जिसकी वजह से ये सारा काम हो जाता है। तो मैंने एक दिन छुप कर देखने की कोशिश किया तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो बहन थी जो हाफिज़े कुरान थी और जिसने 100 लड़कियों को हाफिज़े कुरान कराया था वो उल्टे कुरान लिख रही थी। जब मैंने उसको उल्टे कुरान लिखते हुए देखा तो मैंने अपनी बड़ी बहन को डांट और फटकार लगाया और मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, उल्टे कुरान क्यों लिख रही हो। क्योंकि दोस्तों उल्टे कुरान कोई ये काला इल्म काला जादू का है जो इस्लाम में सख्त हराम है। कोई किसी किस्म का कोई इस तरीके से काम नहीं करता। जब मैंने अपनी बहन को डांटने और फटकारने की कोशिश किया कि तुम उल्टे कुरान क्यों लिख रही है तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि अगर मैं ये ऐसा काम न करती तो मेरा जो भाई था हम पाना वो मर जाता और हमें 1.5 लाख रुपया भी नहीं मिलती। तो प्यारे दोस्तों छोटी बहन ने कहा कि इससे अच्छा होता कि हमारा भाई मर जाता। तुम कुरान को इस तरीके से बेहुरमती के साथ उल्टे लिख रही हो। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह पाक का कलाम है, ये सीधा है और हमें सीधा ही पढ़ना चाहिए। तुम इसे उल्टा क्यों लिख रही हो। तो उसने कहा कि उल्टा लिख रही हूँ तभी हमारे घर का निज़ाम चल रहा है और हमारा भाई भी ठीक हो गया। अगर मैं इस चीज़ को अगर ऐसा नहीं करूँगी तो कोई भी हमारे पास दुआ के लिए ताबीज़ के लिए नहीं आएगा। छोटी बहन ने काफ़ी समझाने की कोशिश किया कि बहन तुम उल्टे कुरान को न लिखो, ये कुरान की तौहीन है और ये कुरान पढ़ने और लिखने का गलत तरीका है और ये काला जादू काला इल्म में आता है। ऐसा करने वाला बहुत ही सख्त गुनहगार होता है। लेकिन दोस्तों उसकी छोटी बहन ने काफ़ी समझाने की कोशिश किया लेकिन बड़ी बहन अपने आदत से
माजूर आ रही और वो अपनी आदत से बाज नहीं आई और कहने लगी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा, हमारा भाई बचा नहीं। कहा कि तुम ये काम छोड़ दो, रोज़ी देने वाला अल्लाह है और हम कहीं से परवरदिगार हमें रोज़ी अता करेगा, लेकिन तुम कुरान को उल्टा लिखना छोड़ दो, ये काला जादू है, काला इल्म है और इससे अल्लाह तबारक ताला नाखुश होता है और इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। प्यारे दोस्तों, मकसद ये है कि उस लड़की को आजाब आने की जो असल वजह थी वो थी कुरान की तौहीन और कुरान को उल्टा लिखती थी, काला जादू काला इल्म किया करती थी। जो मरने से पहले उसने सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार नहीं किया और उस गुनाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं किया, जिसकी वजह से उस लड़की पर कब्र में दर्दनाक अजाब हो रहा था। प्यारे दोस्तों, चलते चलते आपको इम्तियाज़ रजा का मैसेज सुनते चलिए। काला जादू काला इल्म किसी भी नीयत से सीखना कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे या लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, काला जादू सीखने वाला सिखाने वाला सख्त गुनहगार है और अजाब का भी शिकार होगा। इसीलिए कभी भी काला जादू न सीखा जाए और कुरान जैसे मुक़द्दस किताब हमारे लिए शिफा है। अगर हमारा नीयत सही है और हम सच्चे दिल से सही पढ़ते हैं, सीधा पढ़ते हैं, तो हमको उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन काला जादू काला इल्म करना या कुरान से कोई काला इल्म करने का कोई तरीका निकालना, ये सब इस्लाम में सख्त हराम है। हमें और आपको इन जैसे गुनाहों को से बचने की कोशिश करना चाहिए। और आपने देखा कि उस लड़की पर किस तरीके से अजाब हो रहा था। तो काला जादू काला इल्म या कुरान की तौहीन की या उल्टा कुरान लिखना, ये इस्लाम में सब सख्ती से मना है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाक़या से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त इम्तियाज़ रजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।